جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ہجیرہ آزاد کشمیر میں، جہاں پہ آزاد کشمیر کے نامور عالم دین اور معروف مذہبی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حیات خان قادری، جن کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں اس وقت موجود ہوں ان کی رہائش گاہ پر، جہاں پہ ان کے جو مریدین ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں اور عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور ان کا آخری دیدار کر رہی ہے، اور دوسری جانب ان کی جو آخری ارام گاہ ہے اس کی تیاریاں بھی جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو حضرت علامہ مولانا محمد حیات خان کی اگر بات کی جائے تو یہ آزاد کشمیر بھر کے جو علماء کرام ہیں ان میں ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ دوسری جانب وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے جو نامور علماء کرام ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس وقت ان کے شاگرد رشید میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گا کہ آج ہجیرہ کی ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ ہجیرہ میں یہ دوسرا بڑا جو سانحہ ہے، دوسری بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے مولانا حیات صاحب کی جو دینی اور مذہبی خدمات ہیں اس حوالے سے؟ جی، مولانا حیات صاحب کے بارے میں تو جو آپ نے ایک تفصیل بیان کر دی ہے کہ وہ ایک عالمی ایسے عالم دین تھے جن کی وجہ سے ان کی خدمات تو سب پہ عیاں ہے۔ پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں ان کے ہزاروں طلباء ہیں، اور مولانا جو ہیں وہ آج پورا میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہجیرہ نہیں، پونچھ نہیں، پورا پاکستان کشمیر جو ہے سوگوار ہے۔ تو ہم اس موقع پر سارے غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، تو ان کے لیے دعاگو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ ہجیرہ آزاد کشمیری ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت جن کی تقریباً کوئی 5-7 دہائی ہیں، علمی خدمات، دینی خدمات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہ فان ویبقى رب ذوالجلال والاکرام۔ میں آپ سے ان سارے جتنے حضرات موجود ہیں ان کے غم میں برابر کا شریک بھی ہوں، اور مجھے پچھلے 50 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر کہہ سکیں 1962 سے، اپنی بچپن کے زمانے سے مجھے ان کی رفاقت رہی ہے۔ میں نے بے شمار راتیں بھی ان کے پاس گزاری ہیں، اور براہ راست مختلف علاقے کے اندر، پوری ریاست کے اندر جہاں یہ جلسے کرنے کے لیے جاتے تھے تو میں ان کا بیگ بردار رہا تھا۔ تو میں نے بڑے قریب سے دیکھا کہ اسلاف کی ایک زندہ تاریخ تھی، اور استغنا کا یہ عالم تھا کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں ایسے استغنا والے لوگ پیدا ہونے، یہ اللہ کی مہربانی ہوگی کہ اللہ ہم بد نصیبوں کو ان کا کوئی نعمت بدل عطا فرما دے۔ تو میں یقین کریں کہ ان نامساعد حالات کے اندر، اس مرکز کے اندر جو انہوں نے خدمت کی ہے اور ریاست بھر کی جو خدمت کی ہے، تو اس کے لیے تو ان کے ہزاروں شاگرد جو ہے وہ زندہ دلیل ہیں، زندہ مثالیں ہیں جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی علماء کا بہت بڑا علماء کا گروہ موجود ہے، لیکن استغنا کا جو مقام ہے، یہ خصوصی جو فضل و کرم تھا وہ حضرت شیخ انہی پر تھا کہ جو میرے رفیق بھی رہے ہیں اور میرے مربی بھی رہے ہیں۔ تو میں آج میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے سر سے ایک بہت بڑا شفقت کا ہاتھ، نہ مجھ سے بلکہ اہل ہجیرہ، اہل ریاست کا ہے، سر سے وہ سر اٹھ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شاگردوں کو اب یہ بیڑا اٹھانا چاہیے، اور ہمیں ہماری جو ہے رہنمائی کرنی چاہیے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج جس طرح اس شیخ کامل کی روانگی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں جاتے ہوئے بھی اہل سنت کی بہت بڑی نمائندگی ہو رہی ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا کہ جس عقیدے پر اتنا پختہ کیا کہ آج اب گزرے دور کے اندر بھی ہم انشاءاللہ ان کے عقیدے پر قائم اور دائم رہیں گے، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں خرید نہیں سکے گی، چونکہ آج تک ہماری شیخ نے کبھی کسی کے آگے دست درا ہاتھ جو ہے نہیں بڑھایا، اور
इस्तगना का ये आलम था कि इसी हालत में आए। और आप यकीन करें, मैं आप मुझसे ज़रा उम्र में छोटे हैं, आप यकीन करें कि मौलाना ने 60 रुपये माहवार पर यहाँ खताबत का आगाज़ किया। ऐसा इस्तिकामत वाला आदमी, हमें दुआ करें हम सब मिल के, हम सब गुनाहगार हैं, आज अपनी गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए आए। मैं तो ये समझता हूँ कि आज जो शेख के जनाजे में होगा, इस आलम बामल के जनाजे में जो शिरकत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारे गुनाह माफ़ फरमाएगा। इसलिए कि ये इस्तिकामत का पहाड़ था, इसने हमें दर्स दिया। अल्लाह तो मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस गमज़दगी की हालत में आपने मुझ जैसे सोगवार से चंद अल्फाज टूटे फूटे जो है लेने की जो है मुझे मेहरबानी फरमाई है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये जितने लोग उनके अकीदतमंद आज इस महफ़िल में आए हैं, जनाजा पढ़ने वाले हैं, और कुछ लोग रास्ते में मिले, ख़वातीन का एक सिलसिला बांधा हुआ है। अब देखिए ये किस कदर ये ख़वातीन हज़रात के अंदर ये हमारे शेख थे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जुलाई शमा जो है इसको फ़रोज़ा करने में अल्लाह इन सब उनके शागिर्दों को अल्लाह तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अंजाम दिए हैं, उनका निमल बदल तो हम दोबारा नहीं हासिल कर सकते। अब जितने भी इनके शागिर्द हैं उन्होंने वो उनका एक असासा है, और यही चीज़ जो है वो उनके लिए अल्लाह ताला की रहमत बनेगी। और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फरदौस में आला और रफ़ा मुकाम अता फ़रमाए, और उनकी जलाई जो शम्मा है, जो इल्मी मैदान उन्होंने छोड़ा है, उसकी हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अनायत फ़रमाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ना सिर्फ़ अहले हजीरा, ना सिर्फ उलमाए कराम, बल्कि हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अफसरदा है कि हमारे सरों से वो साया हट गया है जो जिसकी वजह से अल्लाह की रहमतें हम पे नाजिल हो रही थी। और ख़ास करके ये जो 2020 का साल गुज़र रहा है, इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं, उलमा हज़रात जो हैं, वो इस दार फ़ानी से रहलत फरमा गए हैं। तो हम सब को मिलकर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से जो आने वाला है, जो बीमारी की सूरत में भी है और उलमा की जो रुखसती है उसकी सूरत में भी है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए इस चीज़ को बाइस रहमत बनाए। और उलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आलम रब्बानी का वजूद इंसानियत की फ़लाह व बहबूद का ज़ामिन होता है, और लोगों की आसानी के लिए अल्लाह रहमतें उतारता। इन्हीं के तफ़ैल में अल्लाह सारे इनामात उतारता है। जिसको वली अल्लाह कहा जाता है ये आलिम रब्बानी ही है। तो ये एक आलिम रब्बानी थे, एक वली अल्लाह थे, एक मर्द बाखुदा थे, मर्द दरवेश थे, और इन्होंने हज़ारों की तादाद में उलमा को तैयार किया जो दीन की खिदमत कर रहे हैं। कोई मुल्क में, बैरून मुल्क, हर मकाम पर अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाए और आने वाली नस्लों को उनके फैज़ से फैज़याब फरमाए। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, आज ये कहना इंतहाई मुनासिब है कि मौतुल आलम, एक आलम दीन का वजूद कायनात के लिए बाइस रहमत होता है, और बहिम तुस्कौन व बहिम तुरज़कून, उन्हीं के ज़रिए अल्लाह बारिश देता है और उन्हीं के लिए मखलूक़ खुदा को रोज़ी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना हयात साहब का वजूद मसूद पूरी उम्मत मुसलमान ना सही ख़ित्ता कश्मीर के लिए बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम थे। तो आज सारी कौम ख़ुसूसन हजीरा के मुसलमान उनकी जुदाई में गिरियाँ हैं, रो रहे हैं आहो फगां, और अपने दिल के दर्द से। ज़ाहिर जुमा मैंने पढ़ाया यहाँ, तो उस दिन उनकी कैफियत मेरे सामने थी कि जोक दर जोक लोग जा रहे थे। तो बाहर सूरत, ये कोई तकरीर का वक्त नहीं है, लेकिन दो लफ्ज़ों में मैं अर्ज़ करूँगा कि मौलाना मोहम्मद हयात ख़ान साहब चूँकि शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सरदार मुसब रहमतुल्लाह ताला के शागिर्द भी थे और उनके मुरीद भी थे, और इस पूरे ख़ित्ता के अंदर उनका बड़ा ही एहतराम था। और ख़ुसूसन हमारा कलरा जो है ना, हमारे उस्ताद ग्रामी हज़रत मौलाना अली मोहम्मद साहब के ये ख़ास शागिर्द थे और वहीं तरबियत इन्होंने पाई है। इस मुनासबत से हमारे साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे। तो अब जो नुकसान हुआ है ना, ये इतना बड़ा नुकसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ही अपने फजल से पूरा फरमाए, वरना ना तलाफ़ी
कोई इनका बदल या हल नज़र नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उनके मुरीदीन, उनके मुतवस्सिलीन, उनके मुक्तदी और चाहने वाले और ख़ुसूसन उलमा का तबका, अल्लाह ताला उन सब को सब्र और अजर दे। ख़ुसूसन उनकी जो औलाद है, उनके साहबजादगान, अल्लाह ताला उनको अजर दे, सब्र दे, और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह का फरमान है कि सबसे ज़्यादा मेरी मखलूक में डरने वाले उलमा हैं। ये उन्हीं उलमा में से मौलाना मोहम्मद हयात खान साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत के चिराग जलाए। मैं समझता हूँ कि मौलाना मोहम्मद हयात खान कादरी रहमतुल्लाह अलैह का जाना तमाम इलाके के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। इन्होंने दीन की ऐसी तबलीग की कि उलमा भी पैदा किए और लोगों के दिलों में भी इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा किया। और आलिम वो होता है जो लोगों को सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाता है। आज ये हज़ारों की तादाद में लोगों का यहाँ आना, मैं समझता हूँ ये मौलाना मोहम्मद हयात खान साहब की तबलीग का नतीजा है कि छोटा बड़ा और हर एक आदमी जो है आज सोगवार है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनका जो मिशन है अल्लाह ताला हम सब को उस मिशन को जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमाए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2020 ये यौमुल हुज़न गम का साल करार दिया है हमारे अकाबरीन ने। इस साल के अंदर 2020 के अंदर हमारे अकाबर उलमा इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम, मजहबी शख्सियात, कदावर लोग, अल्लाह के कामल नेक बंदे अल्लाह ने अपने पास बुला लिए। ये बहुत बड़ा अहले सुन्नत के लिए सानिया है। शेखुल हदीस व तफसीर, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, साबिक़ मेंबर मजलिस आमला तंज़ीमुल मदारिस पाकिस्तान, बानी आमिर जमात अहले सुन्नत जम्मू व कश्मीर, जमहूरियत उलमा जम्मू व कश्मीर के साबिक़ सरबरा, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, मोहतमिम दारुल हनफिया रिज़विया हजीरा, हुज़ूर किबरा अल्लामा पीर मोहम्मद अल्लामा शेखुल हदीस पीर मोहम्मद हयात खान साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। आज इल्म का किरदार का एक बाब बंद हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा न डर, बेबाक, हक गोई, बेबाकी, न झुकने वाला, न बिकने वाला, हमेशा अल्लाह और उससे रसूल की बात करने वाला, कभी किसी से ना मांगने वाला आज हम में चला गया। ठीक है, मनु मिट्टी के बाद चला जाएगा, लेकिन उस्ताद जी का फैज़ ता क़यामत जारी सारी रहेगा। और ये पुंछ ही नहीं, पुंछ डिवीज़न के अंदर, पलंदरी और सदरत के अंदर बिल उमूम और बिलखुसूस और आज़ाद कश्मीर में आपकी दीनी, मिली, सियासी, समाजी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हर लम्हे में आप इस्तकामत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम दिया। और इस मौके पर मैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब, सदर तंज़ीमुल मदारिस पाकिस्तान, नाज़िम आला जनाब अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहिब और तंज़ीमुल मदारिस के सरपरस्त आला मुस्लिह उम्मत शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया की जानिब से हज़रत को खराज तहसीन और ताज़ियती कलिमात हम उनकी तरफ से भी अदा करते हैं। और आज़ाद कश्मीर के सदर, मामिनीन खुसूसी, ज़िला कोऑर्डिनेटर सब की जानिब से हम खराज तहसीन पेश करते हैं। मोहब्बत का इज़हार आप लोग करें, अल्लाह आपको जज़ा अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मोहब्बत रसूल और ग़ुलामी रसूल अता फ़रमाए और हम सब को उस्तादों के नक्शे कदम, उनके बताए हुए तरीके पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और यकीनन एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है और वो हमारे सरमाया थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम मत सैल उन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मौलाना हयात खान साहब जैसा दोबारा शख्स मेरे ख्याल में इस धरती में पैदा नहीं हो सकता है, इसलिए कि आलिम तो सब होते हैं, अमल करना बड़ी बात है। उनका चेहरा बता रहा है कि वो कितने बड़े आशिक रसूल थे और मैं उनके चेहरे को देखकर मेरे आका करीम अलैहि
अलैहिस्सलाम से पूछा कि वली की निशानी क्या है, तो सरकार ने फरमाया इज़राउ ज़ुकीरुल्लाह, जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। मौलाना हयात साहब का उनका जब भी उनको देखे, इस वजह से देखा कि उनको देखे फिर भी खुदा याद आता। तो दुनिया में जब उनको हमने देखा तकरीर करते हुए, जब उनकी महफिल में बैठे, तो उनके चंद कलिमात ही से हमें पता चलता था कि हम ये अपनी लेन, अपनी जो इन्होंने अपनी लेन को फिट किया है अल्लाह उसके रसूल के दरबार में, ये सब की लेन को उधर से मिलाने के लिए आए हैं। और इस मौका पर मैं तमाम उलमाए किराम जितने भी जहाँ पर हाज़िर हुए हैं, हम जहाँ के मुंतज़मीन हैं, हम जहाँ के मेज़बान हैं, और इस हम जहाँ की कोई ख़तीब नहीं है बल्कि जहाँ के खादम हैं हम, तो हम तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं, उलमाए किराम मशाइख को, अपने उज़ाम का, उस्ताज़ किराम जहाँ जहाँ से भी आए हैं, अल्लाह साहब के आने को कबूल फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हयात खान साहब का साया और उनका फैज़ान ता क़यामत हम सब पर जारी और सारी फरमाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता। हज़ारों के हिसाब से जो उनके मुरीदीन हैं, उनके जो शागिर्द हैं, वो गमज़दा हैं, और बिलखुसूस जो हजीरा आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ा है वो सोगवार है, और जो हैं वो उनकी खिदमात को याद करके वो दाढ़े मार के रो रहे हैं, गमज़दा हैं। इस वाले से अगर बात की जाए तो आज ज़िले और तहसील इंतज़ामिया की जानब से जो सिक्योरिटी है उसका भी फुल प्रूफ इंतज़ाम किया गया है, और जो हजीरा आज़ाद कश्मीर के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, क्योंकि हजीरा आज़ाद कश्मीर की ये बड़ी मजहबी शख्सियत है जिनका आज विसाल हुआ है। और आज़ाद कश्मीर से जो है वो बहुत सारी अवाम और बिलखुसूस जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके जो ताल्लुक़ वाले लोग हैं, वो यहाँ आज उनके नमाज जनाजा में शरीक होंगे। तो इस हवाला से जो है वो आज़ाद कश्मीर बार से और बिलखुसूस जो ज़िले और तहसील इंतज़ामिया है वो हाई अलर्ट है। जी जय